Welcome to the first edition of the Nalchita Bookathon presented in association with the Raisoni Foundation. In this session, we are going to explore the book ESG, The Art, Heart, and Science of Being Good and Doing Good. Our speaker, Shailesh Haribhakti, is a chartered and cost accountant, an internal auditor, and a certified financial planner and fraud examiner. He is a board chairman, audit committee chair, and independent director at some of the country's most prominent organizations. He is a well known thought leader on the Indian economy and public policy. He is an ex-tech, exponential technologies, ESG, environmental, social and governance, and IR integrated reporting evangelist. He is also an author of two books, The Digital Professional and Audit Renaissance. Mr. Hari Bhakti is highly passionate about the above and actively speaks about them at various forums. Our moderator, Rishabh Kumar Savansukha, is a chartered accountant and tax and management consultant with 25 years of experience in diverse sectors, including Maharatna PSU, Fortune 100 MNCs, multi state cooperatives, unicorn startups, and leading NPOs. He specializes in networking, taxation, mergers and acquisitions, due diligence, digital evangelism, and brand strategy. Rishabh aims to create 10,000 food entrepreneurs and has proven track record with companies like Indian Oil, Schlumberger, Coca-Cola, Oracle, and Snapdeal. He is also the founder of Cloudakar, GST Street, and Best Street Consulting, and serves as Chief Secretary of JBN and Chairman of the Jito Center for Excellence. Now, I would like to hand over this session to our moderator. We are from Nahar Jito Bookathon in association with Raisoni Group and in partnership with Crossword. We are bringing 108 authors on 108 genres. किताबें हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, लेकिन आज हमने किताबों को लाइब्रेरी में सजा दिया है। खरीदता हर कोई है, पढ़ता कोई कोई है, पढ़ता हर कोई है, लेकिन उसको समझता कोई कोई है। लेकिन समझने के बाद भी क्या हम अपने जीवन में उतार पाते हैं? तो इसी श्रृंखला में हमने ये सोचा कि क्यों ना हम ऑथर से ही ये इसका राज जाने, क्यों ना हम ऑथर को ही पूछें कि 48 बता पाएंगे कि उनकी किताब से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। तो ये है नाहर जीतो बुकाथॉन का कॉन्सेप्ट। ये कंप्लीटली निशुल्क है। आप किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी जाति वर्ग विशेष से बिलोंग करते हो, there is no restriction, it is free of charge। आप jitogurukul.bookathon.org पर आए और आपको ये एक्सेस मिलेगा, और आपको एक्सेस के अलावा सेशंस मिलेंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो in this श्रृंखला, the one genre which is very important is ESG, environment, society and governance, and we have none other than authority on this subject, Shri CA Shailesh Haribhakti ji. Welcome Shailesh bhai, welcome on Nahar Jito Bookathon, and we are so blessed, honored to have you. You have worked across the spectrum from farm to factory to folk to boardroom and foreign as well. You have represented our country in a lot of international fora, and you are taking care of this subject with your passion. Your book name itself suggests that you have given art, heart, and kind of a soul to this subject. So we would like to understand from you how this journey of ESG in your life started, and being a boardroom strategy advisor, chairman of many companies, many listed companies, how you picked up this subject, and what is the importance of this subject for our country and for an individual and for a corporate citizen. Thank you, Rishabh. And let me begin by expressing my immense admiration for the concept of this series, for Jito, and for you personally for leading it. Having said that, the greatest inspiration for all three of us who have co-authored this book was the realization that there is an implicit social contract which gives the permission to each business to actually function in a responsible manner. Somewhere 220 years ago, we lost full touch with this social contract. And so the United Nations
got together, 93 nations. They all signed off on what was referred to as the SDGs. And then the world started having a series of committee of people who were involved, COPs as we call them, which over the years started giving us a realization that we have lost our touch with the social contract. And so we need to get back. But in order to get this realization back, they had to use 2 or 3 pegs. So they used the idea of net zero. Central idea is that we should not burden our planet with excessive carbon emissions. And if we are emitting carbon, we should do all we can to either offset it or to find alternative means to do our manufacturing in a way that the carbon footprint is reduced and eliminated on a net basis. But Rishabh, we should realize that unless every company on earth and every one of us as individuals gets to net zero, we will not be able to stop the burden that we are placing on our planet. And what the planet is telling us is that if you burden us, then I will show you Meri Leela. And that is being shown to us through heat waves, through tsunamis, through typhoons, through floods, through climate events, which are overtaking the world. The entire climate change that is happening is visible to us. इस साल दुनिया का सबसे warm साल था. And this is something that we now need to get deep into our realization. That if we don't control this, then there will be necessary migration of people. Because people will not be able to tolerate on an ongoing basis 45 degrees to 50 degrees Celsius of temperatures, ambient temperature. Now, air conditioning in India, for example, has penetrated less than 10%. So what about the 90% unpenetrated space in which the human race has to work and function? If they have to stop, then they will have to move to places where the temperature is tolerable by the human race. So this is not so much the humans saving the planet, but the planet warning us and our taking that warning and changing our ways. But while doing this, good, as we call it, we must also do well. And the good news for the world is that the economic imperative for getting to net zero, for decarbonizing, for not drawing more water out of our planet than what is our share, not sending plastic into landfills, not using non-biodegradable plastic. All of these realizations are coming to us, and all of them have been described in the very first chapter of our book. So, sir, in your book, you have mentioned about Rigveda and Upanishads, and what I understand that during that time, like corporation came at a very later stage. That time it was all cooperatives, and even today, the world's largest organizations are still running in a cooperative model for hundreds of years. Whether it's a LG or IFCO or so many large organizations, so there the social aspect are imbibed in their culture and the way they make the decisions. But sometimes in corporate, the social aspect is forced or mandatory, and that is how they are being done. Otherwise, they are not mandatory because they don't work for larger masses. So
Now in the 5P, when the profit got replaced with prosperity, what is the real meaning of prosperity in terms of either whether it's a EBITDA or PAT, or it is something beyond that? Brilliant question, Rishabh. And our book points to the idea that we must start focusing on two things that human beings are connected to each other with. What connects you and me, Rishabh, and what connects you to the rest of Jito and Jito to the rest of the world? It is the air we breathe, it is the water we drink, and it is the food we eat. There are only three things which create human connect. और ये जो रीति है, ये सदियों से चली आ रही है, ये अनादि और अनंत है। हमको इस संतुलन में रहना है कि इस अनादि से अनंत तक का जो सफर है वो हम अच्छी तरह से तय करेंगे। And that is the purpose of bringing these concepts through our book. Why did we refer? Because Vedanta has become the standard model of the earth. Newtonian Newtonian physics, and post that the Einstein's theory of relativity, quantum physics, all of this, when you string them together, you see traces of our Vedanta. So हमारी किताब में जो स्टैंडर्ड मॉडल बताया गया है वो इन सब चीजों को एक साथ में केंद्रित करता है। उसमें तीन चीज बहुत महत्व की है कि इस कार्य में हम लोग सब जुड़े हुए हैं। None of us can be left behind. Collaboration is absolutely critical. Innovation is also very critical. में संशोधन करना है, अच्छी तरह से संशोधन करना है, और हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना वर्तन करना है ताकि हम प्लेनेट को बिल्कुल डैमेज नहीं पहुंचाएं। We must be water positive. We must be zero to landfill. We must be net zero in carbon. We must be net zero in GHG gases. But how do you bring all of this together? You create the conceptualization in your mind, the vision कि हमको अपने planet को ठीक रखना है, हमको अपने बच्चों के लिए, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए काम करना है, हमें पानी को साफ रखना है, हमें बायोडाइवर्सिटी बरकरार रखनी है, क्योंकि हमारी जो एक्शन से जितनी लाइफ हम मार रहे हैं आज, उससे इतनी स्पीशीज का खात्मा हुआ है कि उसकी कोई हद नहीं है। और जब हम इसको सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि what damage we have done to our environment without often realizing it. In the middle of the Pacific Ocean, there is a patch of plastic which has gathered in a gyre in the middle of the sea, which is the size of France. और हमने बताया है कि इस चीज पे एक ओशन क्लीनअप कंपनी करके कंपनी है जिसके साथ हम इंडिया में जुड़े हुए हैं, भारत क्लीन रिवर्स के नाम से। उन्होंने ये ठेका लिया है कि हमारी रिवर्स जो है भारत की, उसमें से जो प्लास्टिक है वो हम निकाल देंगे और ओशन तक जाने नहीं देंगे। Wonderful. Excellent kind of a initiative. And as you said, पंच महाभूत जो हैं, water, अपना अग्नि, वायु, आकाश, तो इनका जो शुद्धिकरण है, उसको अशुद्धिकरण में कहीं ना कहीं हमारा अपना ही रोल है जो पास्ट में रहा है। कंट्री कैन ब्लेम ईच अदर, बट अभी जो बाकू में जो होने जा रहा है, COP इवेंट जो होने जा रहा है, पेरिस से हमने शुरू करी थी जर्नी, और वापस हम घूम के जो है उसको रिव्यू कर रहे हैं कि भाई हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या पाना है। तो उसमें जो फ्रेमवर्क है, नाउ इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके ऊपर भी एक फ्रेमवर्क अप्लाई करता है, जो BRSR रिपोर्टिंग जो सेबी ने मैंडेटरी किया है। तो बीइंग ए फाइनेंस प्रोफेशनल एंड यू हैव this natural instinct to say that are we having adequate disclosures still, or there is a road to travel, there are miles to travel?
There are miles to travel, Rishabh. It will be false for us to believe that we have reached very far in the journey. We analyzed all the 1000 BRSR reports that were uploaded last year, and we found that the room for improvement is huge. Now, the world is, while BRSR is getting implemented in India, experiencing the benefits of what are called Sustainability Standard 1 and Sustainability Standard 2, issued by the International Sustainability Standards Board. उसमें बहुत उम्दा चीज बताई गई कि जिस चीज को आप मेजर नहीं करोगे उसको आप सुधार नहीं पाओगे। तो मेजरमेंट किस तरह से करना चाहिए कि जिससे इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है, निवेश जो कर रहा है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे निवेश होना चाहिए जिससे आगे चल के फुटप्रिंट जो है वो सबसे कम हो, और वो किस चीज से हो सकती है। तो हमने 5 चीज बताई है हमारी किताब में। एक तो रिन्यूएबल पावर पे हमको तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा कि हमको अपने एमिशंस को नेट जीरो की तरफ खींच के लेके जाना है, सो डीकार्बनाइजेशन करना है। या तो हमको ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी है कि जिससे कार्बन उत्पन्न ही नहीं हो, या जो कार्बन आता है उसको कैप्चर करना है, सेक्वेस्टर करना है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है ताकि वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाए। तीसरा कि हमें सर्कुलैरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारे जहन में भारत में है कि हम लोग किसी चीज को फेंक नहीं देते, हम लोग सब चीज को रीयूज रिसाइकल करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर हमने ये बहुत दिल से और चाहत से किया, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, प्लास्टिक की बोतल, अब एक ही बार उसमें लिक्विड भर के अगर हमने वो फेंक दी और वो लैंडफिल में चली गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो करोड़ों प्लास्टिक की बोतल लैंडफिल में जाती है उससे कितना मीथेन एमिट होता। अब हम क्या कर सकते कि इसको एक DRS की पद्धति है जिसमें गोवा में लागू होगी पहले और दूसरी होगी उत्तराखंड में, कि जहां हर एक बॉटल पे एक QR कोड होगा और उस QR कोड को अगर किसी ने पढ़ा और बॉटल को रिसाइकल करने में मदद की, तो उनको जो डिपॉजिट की गई है प्रोड्यूसर से वो वापस मिलेगी। तो इस तरह से ये जो प्लास्टिक का पूरे एनवायरनमेंट में फैलना है वो रुक सकता है। एक बॉटल 5-6 बार साफ होके अगर प्रिजर्व हुई तो रिसाइकल हो सकती। तो ये ऐसे सब प्रयोग जो चल रहे हैं पूरे देश में, उसका भी वर्णन हमारी किताब में है ताकि लोग जान सकें कि हम क्या कर सकते हैं कल उठ के, हमारा क्या लगन से हमको क्या करना है कि जिससे हम अपने पर्यावरण को ठीक रख सकें। So this is the big lesson that we want to convey through our book, that we not only need to care for our environment, but we also need to care and address the issues of D, E, and I: diversity, equity, and inclusion. हर एक चीज जो हम करते हैं वो सबके लिए होनी चाहिए, सबके हित में होनी चाहिए और उस इक्विटेबल होना चाहिए। सब संतुलित तरह से सबको एक तरह से ट्रीट करना है। ह्यूमन राइट्स जो है जो कभी वायलेट नहीं करने, और इंक्लूजन माने पूरे कम्युनिटी इंक्लूड करके आगे चलना, तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। प्रगति भी होगी, बहुत अबंडेंट रिसोर्सेज भी है, इनोवेशन भी होगा, लेकिन हम ये 3 चीज को लेके चलेंगे तो हम ह्यूमन राइट्स का पालन करेंगे और DEI को इम्प्लीमेंट करके जो फायदा हम पहुंचा सकते हैं सोशल स्तर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
ये सब बातें चैप्टर 5 में आप देखेंगे अपनी बुक में। So basically, sir, you have mentioned about renewable, repurpose, reuse, recycle, and also reinventing some of the models which in your book you have mentioned that how this inclusive approach, collaborative approach can take us to the next level. Now, as an individual, we understand our responsibility. Like the T-shirt which I'm wearing right now is made from a recycled fiber from the plastic bottles actually. So in Jito, in particularly Jain philosophy believes in using to the maximum. Now the thing is when we come to the ESG as a concept which is imposed on our businesses and on our trade, and in that trade, MSME is a very important segment of the business. Today, the large companies may have a philosophy, a policy, a protocol for procurement, sustainable packaging, all those stuff. But when it comes down to MSME sector, MSME is either one driven by the mandate coming from the buyer who is a big company, then they have to understand they have no choice but to follow. Or if the MSME itself want to do something, in your book, how do you address that concern that if an MSME want to become ESG compliant company, what all three things he should take from the book so that he can implement easily? बहुत बढ़िया सवाल है ऋषभ। आप चैप्टर 4 को देखिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। हमने एक पूरा चैप्टर सप्लाई चेन पे लिखा हुआ है। राइट। सप्लाई चेन में हर एक बड़े इंडस्ट्री के एमएसएमई होते हैं। हजारों लाखों एमएसएमई जुटे हुए हैं कि जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको सप्लाई करके बड़ी इंडस्ट्री बड़े पैमाने पे, स्केल पे हमको जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रदान करें। तो हम ये सोचते हैं कि हर एक जो सप्लाई होता है एमएसएमई में से उस पे एक कूपन लग जाना चाहिए कि इसमें कितना कार्बन फुटप्रिंट है जो चल के बड़ी इंडस्ट्री में आता है। जैसे हमने जीएसटी में देखा कि अगर हम पुल करते हैं तो हमको आईटीसी मिलता है, उसी तरह से अगर हम ऐसे प्रोडक्ट को एडवांटेज दें कि जो कम कार्बन फुटप्रिंट से बने हैं तो एमएसएमई को भी फायदा होगा, उनका स्केल भी बढ़ सकता है। बड़ी इंडस्ट्री जो है वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन से एमएसएमई को सिखाएगी कि किस पद्धति से उनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो सकता है, और फिर एमएसएमई को कंप्लायंट होने में बड़ी इंडस्ट्री मदद करेगी। और आज के दिन काफी ऐसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मैकेनिज्म्स बरकरार हो चुके हैं, जैसे कि सिडबी है। सिडबी ने बड़ा अध्ययन चलाया है कि वो एमएसएमई को फाइनेंशियल सपोर्ट देके अपने आप को मेजरमेंट के काबिल कर दें और उनको ऐसे सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करें कि उनका भी हित हो और बड़ी इंडस्ट्री का हित भी बरकरार हो। सर, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज एज एन ऑथर व्हेन यू से दैट फाइनेंशियल सपोर्ट, one is cross subsidization, one is leveraging the institutional support for this kind of an activity. Let us say if an MSME has got a heavy capex requirement to meet certain conditions, certain guidelines, certain international norms, of course that is not a planned expenditure for that MSME. So there are two ways. One is that the MSME will take some loan and then repay the loan, pay the interest, etc. Another mechanism is cross subsidizing and cross border subsidizing. Correct. So what is your view? Because it is, when you say it is a collective problem and the solution is collective, then why someone else to pay the price for someone else's problem? No, we should look at the entire supply chain as one whole chain. ये जो नया दृष्टिकोण हमको डेवलप करना पड़ेगा वो सबसे बड़ी चीज ईएसजी की देन होगी इस दुनिया को, मैं समझता हूं।
जी। क्योंकि अगर ये छोटे व्यवसाय जो कि हमारे देश में है 3.5 करोड़ से ऊपर, यस। ये 3.5 करोड़ जो बिजनेसेस हैं वही नई जॉब्स को क्रिएट कर रहे हैं, वही नया इनोवेशन कर पाएंगे, वही एक तरह से हमारे देश की जो प्रगति हो रही है उसका सबसे बड़ा सपोर्ट बन सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट की स्कीम्स होनी चाहिए। कैपेक्स के लिए इरिडा ने बहुत तेजी से अपना काम चालू किया है, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने फैल के ये किया है। सिडबी ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे कई इंस्टीट्यूशन बने हैं। मुद्रा लोन्स ने कुछ काम किया। हर तरह का फाइनेंशियल इक्विटी और डेट दोनों सपोर्ट एमएसएमई के लिए इंडिया ने कोशिश की। लेकिन आज के दिन भी बहुत काम बाकी है और जो बड़ी इंडस्ट्री है उनको थोड़ा सा बड़प्पन दिखा के इनको साथ लेके चलने का ये एक नई निष्ठा से काम करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सब इसमें जुट जाए, जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड मॉडल जो हमने बनाया है ईएसजी का, उसमें ये कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की बात कही। तो अगर हम इस नई तरह से सोचने लगे कि हमारी कॉस्ट जो है वो एक दिन कम होगी, क्योंकि हमारी पूरी सप्लाई चेन एफिशिएंट होती जा रही है और डीकार्बोनाइज होती जा रही है और सर्कुलरिटी में मानने लगी और जो भी फुटप्रिंट्स हैं उनको कम करने में जुटी। तो ये अगर हमने होलिस्टिक व्यू नहीं लिया तो अलग अलग देखने से हम ये पूरा काम नहीं कर पाएंगे। ये कोलैबोरेशन से ही बात बन सकती है, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट से ही काम बन सकता है। ये बहुत महत्व का ये फोर्थ चैप्टर, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में हमने इस बात। Yes. Fourth chapter is dedicated to the small and mid-sized businesses. So in the cross-border, there are multiple countries. They have their own viewpoint. They have their own thought process. And sometimes when they import, they have an ability to basically put some restriction or restraints in the name of environment sustainable tax. So we can say that environment tax or whatever, you know. So this kind of attitude or maybe a thought process or a school of thought, because as you rightly said, the ESG grid globally has to be constituted. Some protocol has to be globally signed. Like we have hundreds of global agreements for everything, like for air movement, mobility, we have for sea mobility, we have agreements. So similarly for environment, because planet is owned by everyone, it's a one family, it's a one world, one family. So now in this, of course, बड़ों का काम है बड़प्पन दिखाना, छोटों का काम है बड़ों को रिस्पेक्ट करना। तो सब मिल के करेंगे तो ये काम होगा। इसमें पॉलिटिकल विल के अलावा जो मैं देख पा रहा हूँ आपके जो बुक है, बिकॉज आपने इसमें एक मतलब काफी कुछ चीजें इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली आपने कवर करी है। वेयर यू सी द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस in this whole process? Fantastic question again. It is very important that the world starts believing in green finance. मैं तो ये कहूंगा कि एक दिन हर एक रुपया या हर एक डॉलर जो लगेगा, जिसका निवेश होगा, वो ग्रीन पे ही होगा, क्योंकि तब भी हम नेट जीरो पे आ पाएंगे और इसको जारी रख सकेंगे, अबंडेंस क्रिएट कर सकेंगे। इसलिए जो पहला मौका मिले, मैं कहूंगा कि हर एक कॉरपोरेशन को ग्रीन फंडिंग, ग्रीन फाइनेंस की तरफ अपना पूरा ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और आज के दिन यूरोप में बहुत पैसा है, यूएस में बहुत पैसा है, मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा पैसा है, कि जहां से हम ये इंडिया में ला सकते हैं। इंडिया में जो निवेश हो रहा है वो दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, नई इंडस्ट्री देख लीजिए, सीमेंट, स्टील, एयर कंडीशनिंग, आप जिसका नाम लोगे उसमें सब में इंडिया में बहुत स्केल पे आगे बढ़ने का काम चालू है। और हम सोचते हैं कि एक दिन पूरा फाइनेंस ग्रीन फाइनेंस होगा। इसलिए हमें इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए।
Matter is of measurement, discipline, innovation, access, obtaining the funding, and then utilizing, and then reporting on what you're doing in an honest way without greenwashing. अगर Yes. ये सब हुआ तो हम अपनी किताब में कहते हैं कि दुनिया बदल सकती है और Yes. बहुत जल्दी बदल सकती है. ये नहीं है कि हमको 2050 तक खड़े रहना है. आज हमको जो समस्या है उसको सॉल्व करना है. Right. It's important and urgent to get on to this task of refinancing, reorienting, innovating, bringing everything that is green into our thought process. And what we can do, if you see chapter 7, you will see that there are transformative paths to get down to net zero. हमको इसको प्रायोरिटाइज करना. ये पूरी दुनिया में बहुत से ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसको अगर हमने अडॉप्ट की तो हम नेट जीरो की तरफ जा सकते. तो हम ये कहते हैं कि ये सब प्रक्रियाओं को आप अडॉप्ट करिए, आप इसको एम्ब्रेस करिए, आप इसको लेके चलिए. तो यू विल सी, not only will you increase your profit, not only will be the best people attracted to your company, because that is the key resource. आज के दिन अगर अच्छे लोग अपने यहाँ काम नहीं करें तो हम कैसे abundance और scale और profitability की तरफ जा सकते हैं. और आज जो यंग जनरेशन, उन सबको ये मन हो गया है कि सस्टेनेबल एंटरप्राइज हो तो हमको उसमें काम करना ज्यादा पसंद. तो ये भी है, रेगुलेटर भी यही कह रहे हैं, गवर्नमेंट्स भी यही कह रही हैं. और हम जानते हैं कि ह्यूमन रेस खुद टिक नहीं पाएगा. हम लोगों को अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा. अगर टेम्परेचर ऐसे रहे 45-50 डिग्रीज तो हम जी नहीं पाएंगे. तो ये सब चीज हमको यही एक दिशा बता रही है कि रैपिडली ट्रांसफॉर्मेटिवली पाथवेज ढूंढिए कि कैसे हो सकता है. एक मैं और खास बात बताऊं जो जीतो के रीडर्स को बहुत पसंद आएगी, कि वेजिटेरियनिज्म की तरफ जो पूरा बहाव होना चाहिए वो ईएसजी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि सबसे ज्यादा फुटप्रिंट एग्रीकल्चर में जो नॉन वेजिटेरियन चीज को लेके होती है उसमें होती है. तो इसलिए हम ये भी मानते हैं कि एक बार ऐसा आएगा कि जो वायलेंस से हम लोग खाना बनाने की तरकीब करते हैं वो कम हो जाएगी. और हम इसमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत काम हो रहा है और होगा. तो ये पाथवेज हमको ढूंढने हैं और इनको लागू करने हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे इंडिया ने कहा कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर डेवलप करेंगे और उस सब्जेक्ट पे हमने पीछे भी चर्चा करी, उसमें करीबन $1 ट्रिलियन का खर्चा जो है वो सिर्फ सॉइल को इम्प्रूव करने का है. सही बात. that is the money which someone has to invest to acquire that soil from wasteland to best land. करेक्ट. अगर उस वेस्ट से बेस्ट बनाना है, उसमें ह्यूमन हैबिटेट डेवलप की जा सकती हैं, उसमें नए फॉरेस्ट डेवलप किए जा सकते हैं, उसमें लिविंग बीइंग मतलब सभी प्रकार की बायोडाइवर्सिटी को उसमें बैठाया जा सकता है. तो दैट कैन इम्पैक्ट द एनवायरमेंट significantly, very significantly. Absolutely. Now this has got three aspects. One is financial aspect, that who will invest that $1 trillion, and what is the return in terms of finance and return in terms of the decarbonization or the kind of net zero effect. We are talking a lot about green fuel, hydrogen fuel, renewable energy, but somewhere when we generate energy, the energy need to put into constructive use. Correct. If we are going to use the energy to create a refrigerated environment for the human, because we can't control the temperature, so let us create refrigeration which can keep the human alive at 55 degrees. I think that is one approach. Of course, that is needed. But at the same time, can we cool down the temperature by creating forest and allowing people to create private forest? Make it mandatory that if you have set up a 50-acre plant,
you need to have minimum this much of acre of forest has to be there in that plant or whatever. Brilliant thought, ऋषभ. ऑफसेट एक ही चीज से हो सकता है, झाड़ रोपने से. और झाड़ रोपने से कुछ नहीं होता है. झाड़ को पूरी तरह से उसकी केयर लेके उसको उसका जो साइकिल है, अगर 12 साल 15 साल उसकी सेवा करनी है तो लॉन्ग उसका टर्म सेवा का बजट होना चाहिए. बिल्कुल. और ये अगर लोगों के ध्यान में आ जाए और खुद वॉलंटरीली करने लगे. मैं जानता हूं कि कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जो ग्रीन में बहुत मानती है, और मैंने देखा भी है कि कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं कि उनके बगल में पूरी फॉरेस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं. तो आप जो बात कर रहे हैं बहुत महत्व की बात है. और अगर हर एक बड़ी कंपनी, इंडिया की टॉप 100 कंपनियों को ले लीजिए, अगर उन्होंने आपने जो कहा वो अंदर से उसको इम्प्लीमेंट किया, कि अगर उन्होंने 1 एकड़ पे फैक्ट्री बनाई है तो 10 एकड़ का फॉरेस्ट बनाना चाहिए. We can run an adoption program with Can the run help an- of the government that let them adopt 1000 acre, 5000 acre, depending Superb. on the requirement they can set off. Absolutely. और इंडिया में सबसे बड़ी जो शॉर्टेज है वो फ्रूट ट्रीज की है. Yes. ट्रीज की है पहले तो. And और fruit उसमें is source of nutrition. हमारी मेडिकल कॉस्ट कम हो जाएगी अगर हम फ्रूट लोगों को खिलाएंगे. हमारा फ्रूट कंजम्पशन वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट है. सबसे लोएस्ट. तो हम लोग तो ये बहुत ध्यान देते हैं इस पे कि मल्टी क्रॉपिंग करना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए एट स्केल. और एक सर अभी जो रिसेंटली चाइना का एग्जांपल मैंने देखा कि वहां पे एग्रोवोल्टिक, मतलब आप रिन्यूएबल थोड़ा सा हाइट पे लेके नीचे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो आपका जो सोलर प्लेट है उनकी भी सुरक्षा हो रही है. बिल्कुल. और उनकी भी मेंटेनेंस हो रही है, और आप नीचे से जो एग्रीकल्चर कर रहे हो वो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट को जीरो कर रहा है. बिल्कुल. और ये मैंने इंडिया में भी देखा है जी. गुजरात में चले जाइए तो आप ये देखेंगे कि जो सोलर पैनल बनाए हैं उनको एक थोड़ा सा हाइट पे रखा है, एलिवेट कर दिया उनको. एलिवेट कर दिया है, और उसके नीचे क्रॉपिंग हो रहा है और मल्टी क्रॉपिंग हो रहा है. और उससे जो आमदनी होती है, उससे जो मेंटेनेंस करना पड़ता है ये सोलर पैनल का, वो खर्चा निकल जाता है. और मैंने एक जगह ये भी देखा कि वो DEI की जो बात हमने की उसके मुताबिक यहाँ डेफ, डम, in one case even blind people were put to the work to do this तो great. दिव्यांग लोगों को रोजगार मिल रहा है, अंडर सर्व लोगों को रोजगार मिल रहा है. कितना से- बेहतरीन मॉडल एक बन के आ रहा है, जो कि मतलब विन विन नहीं, मतलब ट्रिपल नहीं, 4 टाइम विन है. बिल्कुल. ये सब चीज में अगर हम थोड़ा सा ध्यान देना और हम ये सब चीज होलिस्टिकली अपने माइंड में रखें तो ये सब हो सकता है. हम यही बताने जा रहे हैं अपनी किताब में कि आप रिपोर्टिंग ऑनेस्टली करिए. अगर आप ठीक से रिपोर्टिंग करोगे और आप ये सब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका रेटिंग बढ़ेगा. आपका Yes. रेटिंग बढ़ेगा तो आपका मार्केट कैप बढ़ेगा. यस. आपका मार्केट कैप बढ़ेगा तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए जो आपको फंडिंग चाहिए वो ग्रीन सोर्स से आएगा, और आप बिल्कुल बड़े प्रोजेक्ट्स सुविधा से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पे अगर फाइनेंस मिलता है और ग्रीन सब्सिडी अगर आपको मिल जाती है तो बहुत- आप किसी भी कंट्री, किसी भी कंपटीशन को आप बीट कर सकते हैं. बस ये आप देखेंगे कि हमारी चैप्टर 8 में इसका जिक्र है पूरी तरह. फाइनेंसिंग का जो चैप्टर है उसमें हमने ये सब बातें बताई है कि ये अगर हम अपना नजरिया बदल, हमारा कॉस्ट का जो नोशन है वो लॉन्ग टर्म करते पूरी लाइफ. जैसे ईवी व्हीकल, अब ईवी व्हीकल में कोई मेंटेनेंस का खर्चा ही नहीं है और फ्यूल का खर्चा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का है. जी. अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को डेमोक्रेटाइज कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट रिन्यूएबल का आज सबसे कम है. अगर जी. पूरी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में मार्जिनल पीपीए जो सोलर में हुआ है उस भाव पे होए तो आप सोचिए कि हमारा कॉस्ट ऑफ एनर्जी विल कम डाउन क्रैशिंग.
Why? कि अभी हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, मेजोरिटी हमारा कोल फायर्ड प्लांट से आ रहा है, उसकी जगह अगर रिन्यूएबल से आएगा और ईवी चलेगा और हाइब्रिड मॉडल में एथेनॉल जैसे फ्यूल्स हम, तो बेसिकली सरफेस के ऊपर से हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा कर लेंगे, हमें सरफेस के नीचे नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे यहाँ जितनी एबंडेंस सोलर और विंड की कैपेबिलिटी है उतनी दुनिया में कहीं नहीं। एक्चुअली लद्दाख में मैंने कुछ काम किया था, तो वहां पे जो कैलोरीफिक वैल्यू निकलती है, क्योंकि वहां पे 300 डेज का सन शाइन है, तो अगर वहां पे बंजर भूमि 70% लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट, तो उसको अगर यूटिलाइज किया जाए सोलर के लिए, तो वो मतलब सोलर को फीड कर सकता है काफी इंडस्ट्री, जो दिल्ली वगैरह की इंडस्ट्रीज है वहां से बिजली से चल सकती है। बिल्कुल कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इंडिया आई थिंक आपके बुक ने, मेरे ख्याल से जो अभी हम उस पे आते हैं कि भी हर चैप्टर में आपने फाइनेंस कवर किया, आपने एमएसएमई कवर किया, आपने ग्लोबल अलाइनमेंट कवर किया, आपने एक सोच, दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि बदलेगी, तो आपने वो सारा जो है कवर किया है। तो ये बुक अपने आप में एक होलसम है, और मैं अपने सभी रीडर्स को जो नाहर जीतो बुकाथन में इस सेशन का लाभ ले रहे हैं, आप इस बुक को पढ़िए। और आप इस बुक को पढ़ने के साथ साथ अगर आपका मन में कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, तो हम शैलेश भाई और अन्य ऑथर की परमिशन से ईमेल आईडी भी वहां शेयर कर देंगे, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को ईमेल के द्वारा उन तक पहुंच सकते हैं और आप उनसे जुड़ सकते हैं। आप बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, लिस्टेड कंपनी चलाते हैं, या आप ईएसजी के अंदर कुछ करना चाहते हैं, तो आई थिंक डोर्स आर वाइड ओपन। इट्स अ कलेक्टिव थिंग। There are a lot of people have to put their brain and hands together so that we can do some action on the ground and see that our lovely planet become again green, clean, and prosper us, bless us with blissful moments. Because हम जब भी शहर छोड़ के किसी नेचर की जगह पे जाते हैं, तो 10 दिन में हम रिजुविनेट हो जाते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है। क्यों ना ये आनंद 365 दिन हमारे साथ रहे। बिल्कुल, ये हमको करना चाहिए। मैं एक लास्ट बात मैं बोलूंगा ऋषभ, जो आपके व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो गवर्नेंस की पूरी प्रक्रिया है वो एवोल्यूशनरी होनी चाहिए। बोर्ड्स शुड बिकम स्टूवर्ड्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ये स्टूवर्डशिप का जो शब्द है वो बहुत महत्व का शब्द है, कि हमें अपने सभी बोर्ड्स को इस तरह से स्टूवर्ड करना है कि जिससे सबसे लो कॉस्ट, बेस्ट इम्पैक्ट, मोस्ट स्केलेबल, मोस्ट सस्टेनेबल, जो भी इनोवेटिव तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसको करना चाहिए। और हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बदल के ये सस्टेनेबिलिटी के स्तर पे लाना है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसमें हमने एवोल्यूशनरी गवर्नेंस की बात की है, बोर्ड के रोल की बात की है, और कैसे हम अपनी लीडरशिप से इन सब चीजों पे ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, और हम इसको बदलाव में इस तरह से तेजी से बढ़ सकते हैं कि दुनिया बदल सकती है। मैं इतना ही कहूंगा आपके सब रीडरों को कि हमें साथ मिलके अपनी दुनिया बदलनी है, अपनी दुनिया सुधारनी है, और अपने आप को सस्टेनेबल रखना। Thank you, sir. Thank you very much for your session on this book. And I'm sure now every reader who's listening to this, when they will read the book, they will connect the dots, because your way navigation, जब हमें कहीं डेस्टिनेशन पे जाना होता है तो हमें एक नेविगेशन पाथ चाहिए होता है, जो हम गूगल मैप लगाते हैं या कोई मैप एप्लीकेशन लगाते हैं। इसी तरह से बुक इज ए नेविगेशन wherein author will navigate you to achieve the success in your life. And I'm sure the most authentic source, Nahar Jito Bookathon, our objective is 7 days of knowledge. Jito is standing on 3 pillars: knowledge, seva, economic empowerment. So all 3 are integrated. Crossword is our partner. Any store you visit, you can get a very special discount on any book you buy. So this is something we love to hear from you, sir, again and again. And if possible, we will invite you in our Mumbai chapter. You live in Mumbai, so that physically also people can interact with you and they can understand a little more about ESG. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.